Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, this is our 9th lecture of inequalities in absolute values, and in the last lecture we started with absolute value of x or modulus function of x, and we did some facts regarding that. हमने उनका ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखा वहाँ पे कि कैसे mod of x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, and we did some questions there as well. लेकिन उतने questions enough नहीं हैं मॉडुलस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए. Guys, I need some more time to explain this, and I hope कि आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहेंगे और हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस करते हैं, which is going to be useful to understand the concept of modulus function, and later on ये inequalities को सॉल्व करने के लिए और भी हेल्प करेगा. So friends, हमारा आज का क्वेश्चन है पहला, find the values of x. Remember guys, what is our target here? We have to find the values of x. x के वैल्यूज़ जो कि रियल हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जा सकते. फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड. दीज आर द एक्सप्रेशंस, यू कैन कॉल देम एज अ फंक्शन. आप इनको फंक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ x. सो गाइस, आपको वो x के वैल्यूज चाहिए जिनके लिए आपका ये एक्सप्रेशन डिफाइंड हो. If it is not defined for any particular value of x, so we will not consider that into our account. We will not accept that. So friends, let's talk about this. Let's talk about the first one. Suppose our expression is f of x. This is 1 upon under root of x minus mod of x. Guys, just think about it. आपको f of x defined होना चाहिए. उसके लिए possible value of x क्या है? तो पहले आप जाके देखिए, आप ये रूट है यहाँ पे, इर्रेशनल है. तो इर्रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस मॉड ऑफ x है कि नहीं, आप समझ रहे हैं ना. तो पहले आप x माइनस मॉड ऑफ x को फाइंड आउट करेंगे कि x माइनस मॉड ऑफ x की पॉसिबिलिटी क्या है. तो आइए देखते हैं x माइनस मॉड ऑफ x. मॉड ऑफ x की दो पॉसिबिलिटी आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी माइनस x if the x is negative. So again, in two different conditions, x minus mod of x will also produce two different values here, two types of different values for x greater than 0 and one for x less than 0. So for x greater than or equal to 0, it means for x positive. If x is positive, your mod of x will be taken as x. So x minus x will be equal to what? Yes friends, 0. And just think about it, if x minus mod of x is 0, ये 0 होगा, root of 0 0 होगा, 1 upon 0 not defined. You know that 1 upon 0 is not defined. Anything divided by 0 is not defined. We have talked about this. Friends, 1 upon 0 not defined. आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो क्या आप ऐसे x को लोगे? नेवर. आप ऐसे x को नहीं लोगे. This x will not be included in our solution set. I mean possible value of x नहीं होंगे. Okay friends, let's talk about our next condition, x less than 0. देखते हैं जरा कि x less than 0 के लिए आपको f of x डिफाइंड मिलेगा कि हम वही देखो ये वाला पॉसिबल वैल्यू हो सकता है क्या x का, वो चेक कर रहे हैं. जब हमारा f of x डिफाइंड होगा इसके लिए, तो for x less than 0, for x less than 0, your modulus function of x is what? Minus x. So x minus x, you know that, you know this one, x plus x, which is going to be 2x. But remember friends, you have taken x less than 0, negative value of x, 2x will also be negative. Negative value का square root, imaginary, complex number. So हमको तो f of x तभी भी नहीं मिला, because f of x हमको कैसा मिलना चाहिए? Real values of f of x. f of x is defined, it means f of x has some real values. But guys, here we are getting what? Complex values for this. x less than 0 अगर रहेगा तो 2f(x) नेगेटिव होगा. नेगेटिव वैल्यू का रूट लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज़ अगेन नॉट डिफाइंड. सो ये भी हम नहीं ले सकते. सो कहने का मतलब f of x is not defined for all x belongs to R. इस बात को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको. मैं जैसे कि आप डायग्राम में जाएंगे तो आप देखते हो कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. देखिए आपको x माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए आपको आना चाहिए.
सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स का. So y is equal to x means what guys? This is a line which is passing through the origin. It is a line which is passing through the origin. And what about y is equal to mod of x friends? Mod of x, yes, कल आपने सीखा था last lecture में. Yes, this is the modulus of x. So guys, करना क्या आपको, x minus mod of x. You have to remove mod of x from x. This is x, उसमें से mod of x का कौन सा हिस्सा? Yes, ये वाला हिस्सा. ये वाला हिस्सा आपको निकाल देना है. तो बचा क्या? ये वाला हिस्सा बचा which is negative. वो नेगेटिव है, तो फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स रूट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर. एफ ऑफ एक्स रियल चाहिए, सो हेंस एफ ऑफ एक्स, देयर इज नो सच एफ ऑफ एक्स फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स के किसी भी रियल नंबर के वैल्यूज के लिए आपको एफ ऑफ एक्स नहीं मिलता. सो हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. गाइस आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं तो हमारे पास एक मौका और है. हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू दैट वन. आइए देखते हैं उसको भी जरा. अगेन आपका काम क्या करना है, आपको फिर से सोच लीजिए. आपको x के पॉसिबल वैल्यूज चाहिए जिसके लिए आपका f ऑफ x, आपका ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा. ऑब्वियसली डिफाइंड होगा तभी x को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x. सो गाइज फिर से वही x प्लस मॉड ऑफ x के लिए पॉसिबल आंसर्स क्या हैं आप जानते हो. मॉड ऑफ x दो वैल्यूज रखता है अपने पास, दैट्स वाई हमको दो बार चेक करना पड़ेगा. येस, फॉर x पॉजिटिव मॉड एक्स इज x, तो ये हो जाएगा 2x. येस, चांस है फॉर x ग्रेट. लेकिन आप जरा सोचो, अगर ये 0 के इक्वल ले लिए, x इक्वल टू 0, 0, 0, रूट 0, 0, 1 अपॉन 0, दैट इज गोइंग टू बी वॉट, नॉट डिफाइंड. सो फ्रेंड्स प्लीज़ ये वाला साइन हटा दीजिए. आप चाहो तो इसको इसमें लगा सकते हो. यस, इसके लिए चेक करते हैं. x लेस देन 0 नेगेटिव, x माइनस 0, अंडर रूट 0, 0, नॉट डिफाइंड. अगेन ये वाला वैल्यू नहीं ले सकते, ये वाला वैल्यू ले सकते हैं. सो योर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, यू कैन से. सो आप यहाँ पे कह सकते हो एफ ऑफ x इज defined for x greater than 0, so that means your possible value of x will be what, 0 to infinity. So yes friends, very special question पूछा गया इसे IIT JEE में. This is very interesting one. You have to understand. उससे भी कहीं ज़्यादा हमको यहाँ पर इसे समझना बहुत ज़रूरी था, इस तरह के क्वेश्चंस को. So yes, possible value of x expression should be defined. तो x के वही वैल्यू चाहिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा. ओके गाइस, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सी मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इफ यू सी द पावर यू विल अंडरस्टैंड येस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑब्वियसली येस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बिकॉज ऑफ मॉड ऑफ प्रेजेंस, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा माइंड में डाउट आता है कि यार क्या करें इसमें. सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट चलिए वैसे ही चलते हैं. लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग ना, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 को हम लोग t कंसीडर कर लेते हैं. सो इट विल बी वॉट, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ वी विल सॉल्व इट एज वी आर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे. सो 2 3 जा 6. ओके फ्रेंड्स, 2 3 जा 6 एंड फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 सच दैट माइनस करने पे -1 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे. सो अगेन 3 2 जा 6, 3 को माइनस रखिए और 2 को प्लस. यस, सो वी कैन राइट दिस 2t स्क्वायर माइनस 3t एंड प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. माइनस प्लस -1. एंड नाउ वी विल टेक योर t कॉमन, सो इट विल बी वॉट, 2t minus 3 and it will be what, plus 1 common, 2t minus 3 is equal to 0. And you can write this what, yes, 2t minus 3 into t plus 1 is equal to 0. And you know that 2t minus 3 is equal to 0 or t plus 1 is equal to 0. And here your t is going to be 3 by 2. t is going to be -1 friends. ध्यान से t आपका क्या है,
दिस इज मॉड ऑफ x प्लस 1, क्या मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम चलते हैं इसके लिए। येस, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 एंड हेंस यू नो दैट पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दो वैल्यू से मॉड हटेगा, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। यू कैन राइट दिस x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 एंड ऑब्वियसली एक बार 1 वहाँ जाएगा तो प्लस वाले के साथ, सो 3/2 माइनस 1 विच इज़ गोइंग टू बी 2 1s are 2 एंड येस 1/2। और दूसरा आपका है x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2, सो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड माइनस 1, so yes this will be minus 5/2. So guys, we have two possible values of x is equal to 1/2 and x is equal to minus 5/2. So this question is solved like this. इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। Now we'll go to very interesting question. आप इसको देखिए ध्यान से। Yes, root is equal to 1 है ना, कंफ्यूजिंग। बट फ्रेंड्स मैं आपको कहूँगा जब भी ऐसे क्वेश्चन सामने आए तो आप एक बात तो जानते ही करके, अनलेस यू टेक द थिंग्स आउटसाइड द रूट, जब तक आप रूट से बाहर नहीं आएंगे तब तक सॉल्यूशन के चांसेस ही कम है कि नहीं। सो हेंस रूट से बाहर आने के बारे में हमको प्लान करना है। सो रूट से बाहर हम तभी आ सकते हैं जब हम अंदर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे। सो यस, परफेक्ट स्क्वायर आप इसको टारगेट करिए, ये जो रूट ऑफ x माइनस 1 जो है, बिकॉज ये भी एक अंदर रूट में है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसका परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, सो आई कैन मैनेज दिस एज वॉट, आई कैन राइट दिस x माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस 4 minus 1 and plus 4 will become what? 3. Here also इसको भी बिल्कुल ऐसे ही आप पहले इसी को देख लीजिए, ना हो तो नहीं, चलो कर लेते हैं, we'll have to follow the steps everywhere. Under root x minus 1, here also friends we can write this is what? X minus 1 minus 6 under root of x minus 1 and we can write this as what? Plus 9, isn't it? 9 minus 1 will become 8 and right side what is there? It's 1. Okay guys, look at this now. ये जो आपका under root of x minus 1 है, we can write this under root of x minus 1 the whole square. As you know, we can write as a as root of a the whole square. Everybody knows that. इसमें कोई दो राय नहीं है. Minus we can write this 4 under root of x minus 1 and this one as perfect square of 2. And now you know this is, if you consider this one as a, this one as b, so a square, b square and minus obviously 2 2s are 4 root. So it will be 2ab. This is what? Minus 2ab. So this is like that. a square minus 2ab plus b square. You must have understood. और इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला भी आप देख रहे हो, we can write this as well as under root of x minus 1 the whole square minus 6 root of x minus 1 and plus 3 the whole square is equal to 1. And now we can write this under root of, this is our a under root of x minus 1 and this is our b the whole square and plus under root of, here again this is our a x minus 1 and minus, this is minus, that's why minus 3 the whole square and this is equal to 1. And guys, you must remember in the last lecture we talked about that. Yes, under root of x square is what? Yes, mod of x. बहुत सही तरीके से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आपको एक बार जाके फिर से देखना चाहिए ऐसा क्यों है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यों है, आपको ज़रूर एक बार वहाँ पे जाके देखना चाहिए। येस, सो येस वी कैन राइट दिस इज व्हाट? मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 एंड प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ तक तो पहुँच गए, हम रूट से बाहर आ गए, लेकिन रूट से बाहर निकले और मॉड में आके अटके।
isn't it? रूट एक कम समस्या थी क्या कि रूट मॉड में आके अटक गए, लेकिन मॉड के बारे में तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मॉड यहाँ पर हमको अभी तो पता ही है कि क्या करना है वहाँ पे। मॉड के दो पॉसिबल आंसर्स हैं, इसके भी सच दैट वी हैव टू टेक देम एज दे आर प्रोड्यूसिंग वॉट 1, उनको ऐसे लेना है कि वो 1 आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे कुछ 2 बार इसको स्प्लिट करने की बजाय क्यों ना हम इस 1 को ही इनकी हेल्प से एडजस्ट कर दें। ज़रा सोच के देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आई मीन दिस 1 माइनस दिस 1, तो माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस ऑफ दिस, -2 + 3 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका 1 आपका आ जाएगा। आई मीन मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये चीज़ आपको आगे याद रखनी है, बिकॉज इट इज़ ए ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हियर। ऐसा ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में जब भी ऐसा आएगा तो वहाँ पे एडजस्टमेंट ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। इन दोनों को यूज़ करके 1 को लेकर आना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, √(x - 1 - 2) माइनस √(x - 1 - 3). If you write this minus, so minus this will get cancelled. -2 minus minus +3, -2 + 3 will become what 1. So in place of 1 we are writing this much. ऐसा लिखने से क्या होगा? अरे फ्रेंड सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, ऐसा लिखने से ही तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लुक एट दिस, यस आप देखिए, ये अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो, कुछ चेंज किया आपने क्या माइनस से मल्टीप्लाई किया? नहीं किया मल्टीप्लाई, इसको आपने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसका मतलब ये कि मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा, बिकॉज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x for x greater than or equal to 0 for positive values of x, this is as it is written। लेकिन अगर उसको आपने -x लिखा, मतलब आपका x क्या रहा होगा, आपके मॉड के अंदर का वैल्यू क्या रहा होगा? यस, नेगेटिव रहा होगा। सो हेंस इसको हमने वैसे ही लिखा और इसको हमने माइनस दे दिया। देख रहे हैं आप, इसको हमने कैसे लिखा, वहाँ पे माइनस दिया है, मतलब ये वैल्यू अंदर का लेस देन 0 रहा होगा तभी ना। सो हेंस यहाँ से क्या बात सामने आती है कि √(x - 1 - 2) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड √(x - 1 - 3) इज लेस देन और इक्वल टू 0। यस, अब आप यहाँ से सोचिए, √(x - 1) 2 वहाँ जाएगा, ग्रेटर देन 2, यस, x - 1 एंड √(x - 1). तो ये जो √(x - 1) है, दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स आपको पता है 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटी डजेंट चेंज द इनइक्वालिटी साइन, मतलब लेस देन सब वैसे ही रहने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यस, तो स्क्वायरिंग 4x - 1 9, -1 हटाना तभी ना x मिलेगा आपको, तो एडिंग ऑल द साइड एडिंग ऑल द साइड 1 थ्रू आउट आप 1 ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी 4 + 1 लेस देन और इक्वल टू x - 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 9 + 1, सो विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस, क्या मिलने वाला है आपको, 5 इज लेस देन और इक्वल टू x, बिकॉज ये तो कैंसिल हो जाएगा, आप समझ ही रहे हो, एंड लेस देन और इक्वल टू 9, हेंस योर x belongs to close interval 5, 9. So guys, this is the way to solve this type of problem here. I hope you are well understood with this one. नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए और ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चन बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको सॉल्व करने हमको आना चाहिए इन whenever we are solving the absolute values। ये वाला स्टेप आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ये वाला और ये वाला दोनों स्टेप आपका यहाँ पे, ये दोनों ही हमको समझना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हर एक स्टेप में बिकॉज आपने कुछ ना कुछ नया अपनाया है, यहाँ पर जब आपने सोचा तो फिर आगे का प्लान तो हो ही गया कि करना क्या है आपको, है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है अंदर, इजंट इट। सो फ्रेंड्स चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के। ओके फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। हम चेक कर लेते हैं कि हमको mod of x का हमको कितना समझा हमको। सो फाइंड mod of x when the possible values of x you are given, mod of x, remember mod of x एक ऐसा मशीन है जिसमें x का कोई भी वैल्यू जाएगा पॉजिटिव बन के आएगा, isn't it? सो रिमेंबर पॉजिटिव ही ध्यान रहे।
So for the first one, x, yes, x is 2 to 4. तो 0 तो कहीं पीछे छूट गया ना आपका, 0 तो आपका यहाँ पे है फ्रेंड, कहीं पे पीछे हो गया वो। तो बस इनके बीच में जो वैल्यूज़ है, mod of 2 2, mod of 4 4, सो अगेन आपका जो mod of x है वो भी ऐसा ही होगा, बिकॉज वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का mod तो पॉजिटिव ही होता है, तो वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, सो बी केयरफुल। समझ रहे हैं आप? सेकेंड कंडीशन में चलते हैं, देखते हैं जरा। यस, सेकेंड कंडीशन में फ्रेंड्स -3 to -1, -3 to -1, इसके बाद कहीं पे 0 आएगा। तो फिर से वही बात है एक्चुअली, अगर आप यही वैल्यूज़ की बात कर रहे हो, -3, -2, -1 एंड इन बिटवीन, आप अगर मॉड लोगे तो इसका मॉड हो जाएगा 1, इसका मॉड हो जाएगा 3, और मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है ये, क्या है? मिनिमम है। सो आपका जो mod of x है फ्रेंड, mod of x जो आपका है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 3। अच्छा, वहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है। सो फ्रेंड ये भी याद रहे जरा। हाँ, याद है ना? इक्वल का साइन मतलब क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स 1 and 3 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बाई mod of x। mod of x का वैल्यू 1 और 3 दोनों हो सकता है। ओके, थर्ड में चलते हैं। यहाँ पे थर्ड में क्या है? -3 to 1 अगेन। येस फ्रेंड्स, हियर इट इज -3, हियर इट इज 1, बीच में 0 आता है, बीच में 0 आता है। तो जरा ध्यान रहे, -3, -2, -1 भी यहीं पे आ जाएंगे। सो इसका मॉड 1, इसका मॉड 0, इसका मॉड 1, इसका मॉड 2, इसका मॉड 3। सो mod of x के लिए मिनिमम वैल्यू क्या हुआ इन सब में से? 0। सो ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन। अच्छा बताओ, -3 से, लेकिन 0 तो था ना यहाँ पे, -3 से 1 आप जा रहे थे, तो 0 बीच में कहीं पे आ रहा था। सो x 0 तो ले सकता, तो हेंस यहाँ पे mod of x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 3। इसके लिए भी वही है। फोर्थ वन में फाइंड mod of x -2। तो पहले पहले x तो फाइंड कर ले, उसके बाद x -2 देख लेंगे। ठीक है, पहले x फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे जरा, कि हमारा x क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? -5 to 7। सो सिंस आपका जो x है दैट इज -5 to 7, लेकिन हमको तो mod of x -2 चाहिए, तो पहले x -2 फाइंड करो फिर mod निकलेगा। तो -2 कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्टिंग 2 थ्रू आउट, यू कैन से तीनों ही नंबर्स में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। आई मीन -5 -2, x -2, 7 -2। सो ऑब्वियसली दिस विल बी वॉट? -7 x -2 and this is 5. So -7 to 5, mod of x -2, here it is -7, here it is 5, in between कहीं पे 0 है, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, then 0, उसके बाद फिर आपका नंबर फिर से 5 तक रिपीट होगा। सो मिनिमम वैल्यू विल बी वॉट? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? mod of -7 7। सो आपका जो mod of x -2 है फ्रेंड्स, दैट इज greater than or equal to 0 but less than or equal to 7. Similarly we'll go for fifth one। ऐसे ही पांचवे के लिए चलते हैं, ध्यान से, लास्ट है आपका ये। फिर से वैसी बात, 2x -7 के लिए, तो पहले एक काम करो, आपका x क्या है? Your x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इन्वॉल्व नहीं है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या रहेंगे? इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। यस, ठीक है, यहाँ पे लिए गए हैं। सो पहले 2x -, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड। 2 1s are 2, 2x, 2 5s are 10, देन सब्ट्रैक्ट 7 थ्रू आउट। सो 2 -7 लेस देन और इक्वल टू 2x -7 एंड 10 -7। So what is 2 -7 friends? This is -5 and this is 3. So -5, -4, -3 mod लोगे इसका। So mod of 2x -7 friends, it will be greater than or equal to 0 because in between कहीं पे 0 आ रहा है, -5 3 के बीच में कहीं पे 0 आ रहा है, and mod of -5 क्या हो जाएगा आपका? 5। सो यस, ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप आराम से नंबर लाइन पे जाइए, अपने नंबर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए
और चेक कर लीजिए आपका कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू रहेगा। मॉड लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ अगर इन बिटवीन जीरो रहेगा ना तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मिनिमम वैल्यू वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अदरवाइज आपने देखा यहाँ पे जीरो उसके बीच में नहीं आ रहा था उनके बीच में, तो 2 आपका मिनिमम वैल्यू, 4 आपका मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, जीरो उनके बीच में नहीं था, सो 1 इज़ द मिनिमम वैल्यू एंड 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में जीरो है तो जीरो विल बी द मिनिमम एंड इसका मॉड विल बी द मैक्सिमम। एंड ऐसे ही कुछ चेंजेस जो करेंगे तो आप यहाँ पे कर लेंगे आराम से। फाइन, ओके फ्रेंड्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फ्रेंड्स कुछ देर पहले हमने हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, बट यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। इन फंक्शंस के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं वो पता करो। एक्स तो रियल होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन के पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। सबसे पहला हम बात करेंगे फर्स्ट वन, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। सो गाइस बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे से जाएंगे। पहले एक काम करते हैं, हम अपने अंदर का जो वैल्यू, जो रूट का जो वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है, बिकॉज आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दोज वैल्यूज वी विल गेट आवर एफ ऑफ एक्स। सो पहले तो आप जानते हो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके, देन मॉड ऑफ एक्स -2, ऑब्वियसली 0 - 2 इज व्हाट, -2। लेकिन जरा सोचो फ्रेंड्स, -2 का मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आपका है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब ये -2 भी हो सकता है, लेकिन क्या आप -2 लोगे क्या, नहीं, बिकॉज आपका अगर -2 रहेगा तो अंडर रूट ऑफ -2 इट विल बी इमेजिनरी, तो नहीं ले सकते। कैन यू टेक -1, अगेन सेम थिंग, कैन नॉट टेक, बट येस 0 है तो अंडर रूट ऑफ 0 इट्स रियल, वी कैन टेक दिस, तो एफ ऑफ एक्स कैन गेट द वैल्यू 0, सो 0 इज पॉसिबल। एंड आफ्टर दैट कुछ भी ले लीजिए आप, तो यहाँ से जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ x - 2 हैं, इसके जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब के लिए आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। सो हैंस ऑल ऑफ यू, जब आप 0 यहाँ रखोगे तो स्क्वायर रूट इज 0, 1 रखोगे रूट ऑफ 1 इज 1, 2 रखोगे रूट ऑफ 2 इज 2, सो इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू विच इज ग्रेटर दैन 0, जो आपको 0 से बड़ा होगा। सो हियर योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स belongs to close interval 0 to up to infinity. Yes, you can take 0. Yes, for this one equal to 0, under root is also 0. No problem, we can take this. Okay, चलिए ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया। Let's talk about our second one. Suppose our f of x is under root of 3 minus mod of x minus 1. Guys, मैं सेम वे से मैं फिर से वैसे ही डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर। सो सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसके बारे में, मॉड ऑफ x minus 1 के बारे में। एवरीबडी नोज दैट दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, सो माइनस मॉड ऑफ x minus 1 विल बी, जानते हो आप ना, that postulate, or you can say that axiom, or you can say that property, yeah, the fact regarding the modulus of the inequality में changes कभी आते हैं, जब आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ 3 हैज़ टू कम ओवर देयर, सो एडिंग थ्रू आउट 3, सो इट विल बी 3 minus modulus of x is less than or equal to 0 plus 3। सो गाइस ये जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 3 आया, और आपको तो अच्छी तरीके से पता है नेगेटिव तो उसको ले ही नहीं सकते, अगर नेगेटिव लोगे तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी, सो ऑब्वियस ही बात है लिया ही नहीं जा सकता। तो ये जो रूट के अंदर का जो वैल्यू है, सी उसका रूट लोगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा। सो दिस वैल्यू इज पॉसिबल फॉर 0 to 3। तो आपका जो फंक्शन है, आई मीन 3 minus mod ऑफ x minus 1, इसका जो रूट होगा वो इसका स्क्वायर रूट 0 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हेंस यहाँ पे आपका जो f ऑफ x है दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, रूट ऑफ 3। शायद आपको नहीं समझ में आया,
लेट्स हैव सम और वन मोर क्वेश्चन हियर, एक चांस और है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ज़रा। सो तीसरे वाले में, सो योर एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ एक्स। अरे ये क्या, ये कभी हमने नहीं देखा है क्या? यस, दैट इज व्हाट, दैट इज mod of x, you better know that. In the last lecture we have talked about this. अगर थोड़ा भी डाउट है कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो आप जाओ वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे पूरा वीडियो रिवाइंड करके अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना यार, समझ रहे। सो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस mod ऑफ x, फिर से वैसी ही बातें करेंगे हम। सबसे पहले mod ऑफ x, एवरीबडी नोज दैट, इसकी कहानी किसी से छुपी नहीं है। mod ऑफ x इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव and minus, so multiplying obviously will change the sign of inequality, and then adding 4 to all the sides, 4 minus mod of x, obviously इसके 4 के ऐड करने से साइन चेंज नहीं होगा। yes, तो इसका तो 4 से ग्रेट लेस देन इक्वल टू और क्या, yes, हाँ, बिकॉज ये वैल्यू रूट के अंदर है, ये वैल्यू आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर वो नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट विल नॉट बी डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। सो इसलिए बी अवेयर ऑफ दैट, एंड यू नो, समझ रहे, 0 से ग्रेटर, 4 से स्मॉल। सो ऑब्वियसली व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस mod ऑफ एक्स, गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, square root of 4 is 2, and hence your f of x belongs to close interval 0 to 2. Okay friends, समझ गए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको जाके उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो अब चलते हैं यहाँ पे ज़रा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो फ्रेंड्स, mod ऑफ, आपने देखा शायद कुछ देर पहले, आपने इस कंडीशन को भी आपने फेस किया हुआ है। यस, वो जो रूट वाला क्वेश्चन था ना, जिसको हमने mod में परफेक्ट स्क्वायर बना के बाहर निकाला हमने उसे रूट से, एंड नाउ ये बिल्कुल उसी कंडीशन में। आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, mod ऑफ x माइनस 3, mod ऑफ x माइनस 2, 1 राइट साइड में है। इसको सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, वही सेम ट्रिक। क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करो कि राइट साइड का 1 एडजस्ट हो जाए। सो आई मीन, अगर आपका -3 अगर ये प्लस होता तो 3 एंड -2 विल बिकम 1। सो इसको प्लस होने के लिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। सो हेंस वी कैन राइट दिस mod ऑफ x माइनस 3 प्लस mod ऑफ x माइनस 2, एंड दिस 1 विल बी एडजस्टेड एज माइनस ऑफ x माइनस 3. सो हेंस इट विल बिकम +3, एंड जस्ट कीप दिस वन एज इट इज। सेकेंड वाले को वैसे ही रख दो। आप देख सकते हो -x एंड +x विल गेट कैंसल्ड, माइनस इंटू माइनस +3 एंड -2 will give you 1. So right side 1 is adjusted with respect to the left hand side, and now we can decide, everybody knows that, yes, सभी लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पे साइन में चेंज आया है। mod ऑफ x माइनस 3 जो है वहाँ माइनस हो गया है, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव रहा होगा। येस, x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ से ये डिसाइड होता है। लेकिन ये x माइनस 2, यहाँ पे mod ऑफ x माइनस 2 अभी भी x माइनस 2, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि mod के अंदर का जो वैल्यू x माइनस 2 है दैट वाज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव था, दैट्स वाई। ओके फ्रेंड्स, दिस मीन्स व्हाट, x लेस देन 3 एंड दिस मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो 2 से ग्रेटर एंड 3 से स्मॉल, so your x belongs to 2 to 3, x belongs to 2 to 3, 2 से greater 3 से small, समझ गए फ्रेंड्स। so okay friends, so now in the next lecture we will talk about the inequalities of some absolute functions, that is also very important one. so guys, आप इसको अच्छे से क्लियर कर ही लेते हैं। so next lecture में इसको हम डिस्कस करेंगे और भी। so प्लीज़ कम विद द फुल प्रिपरेशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने नहीं रिवाइज़ किए तो एक बार रिवाइज़ करने के लिए, अगर वीडियोज़ ना मिले, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसे देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।